Jai Hind friends, greetings of the day. My dear friends, let's start today's class without delay. My dear friends, today we begin new chapter. The name is future tense. So today's our topic is future indefinite affirmative sentence. Before this class, we have already finished all the classes of present and past tenses. Means we have already finished present and past tenses. In present we studied all the sentences like present indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Such type we finished the past indefinite, past continuous, past perfect continuous tense. Such kind of it will let start today's class future indefinite affirmative sentence. My dear friends, mean of future. So mean in the sense, future in the sense the time which will come. The time which will come. वह समय जो हमारे जीवन में आएगा. फ्यूचर किसे कहते हैं? The time which will come. The time which will come in our life. जो समय हमारे जीवन में आएगा is called future. ओके, लाइक सपोज कल मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा. कब मिलूंगा? कल. तो वी आर टॉकिंग अबाउट टुमारो. टुमारो इन द सेंस फ्यूचर. टुमारो इन द सेंस फ्यूचर. नेक्स्ट इंडेफिनेट. इंडेफिनेट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट डिवाइड इट इन प्लस डेफिनेट. डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं हो. इसी प्रकार से अफर्मेटिव इन द सेंस द टेंस विच इज एक्सेप्टेबल. ऐसा वाक्य जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिसमें नहीं या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए. इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्सेप्टेबल या अफर्मेटिव या स्वीकारोत्तमक या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य. ओके, नेक्स्ट इज सेंटेंसेज. सेंटेंसेज इन द सेंस वाक्य. सो अनिश्चित स्वीकारात्मक भूतकाल के वाक्य. सो आइडेंटिटी इन द सेंस एंड ऑफ द सेंटेंसेज. एंड ऑफ द सेंटेंसेज. गा, गी, गे, एटसेट्रा. So my dear friends, what is the meaning of it? End of the sentences. This is the sentence. The what is the sentences? The word which is made two or more than two words but give complete sense. दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ एक वाक्य जो पूरा सेंस दे, जिससे पूरा होने का या पूरा एक समझ विकसित होती है कि इसका क्या मतलब हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. What is called sentence? What is called sentence? So end of the sentence, guys will find ga, gi, ge. So end of the sentence we are finding here ga, here ga, ge, gi. So this is mean. What is mean? This sentence belong from these sentences. Which sentence is this? Future indefinite affirmative sentence. Are you getting? Yes, sir. Are you getting? Yes, sir. Okay. So rule in the sense subject plus will, shall plus V1 plus object plus full stop. My dear friends, in earlier classes I also taught you what is the meaning of subject. Subject means the person who does the work. वह व्यक्ति जो काम को करता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. क्या कहलाता है? मम्मी सब्जी बनाती है. मम्मी कुक्स फूड. व्हाट इज द सब्जेक्ट? मम्मी. व्हाट इज द सब्जेक्ट? मम्मी. इसी तरह से प्रधानमंत्री कल यूएसए जाएंगे. कौन जाएगा? प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री. व्हाट इज द सब्जेक्ट? प्रधानमंत्री. द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर. Okay, so my dear guys, are you okay? Are you understand well? What is the subject? Subject is the clear things. Okay, next is will and shall. This is helping verb. What is this?
helping her, What is this? helping her. Okay, so now I will tell you what is the use of will and what is the use of shall. My dear guys, you need to very carefully. Sometimes we use in future tense. With I and we always use shall. I और we के साथ किसका यूज होता है? Shall. और ही सी इट दे एंड यू के साथ किसका होता है? विल का। लेकिन लिखते समय आपको ध्यान रखना है आई और वी के साथ सेल का यूज ले, लेकिन बोलने में तो आजकल कुछ भी बोल देते हैं, यू के साथ भी सेल का लगा देते हैं या आई और वी के साथ भी विल का लगा देते हैं। तो बोलने में नॉर्मल कन्वर्सेशन में लैंग्वेज में चल सकता है, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तब आपको क्या करना है? सेल के साथ आई और वी का ध्यान रखना है और ही सी इट दे एंड यू के साथ विल का ध्यान रखना है। आर यू कंफर्टेबल? यस और नॉट? Yes, sir. डोंट डिस्टर्ब मी, कीप डाउन योर बुक। सब्जेक्ट रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। माय डियर गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट एग्जांपल। मैं कल गांव जाऊंगा। कहां जाऊंगा? Gaon. व्हाट इज दिस? मैं। नेक्स्ट इज कल गाँव जाऊंगा। मैं कल गाँव जाऊंगा। मैं कल गाँव जाऊंगा। मैं कल गाँव जाऊंगा। वह सोमवार को आपसे मिलेगा। तुम मंदिर जाओगे। राधा स्टेज पर नाचेगी। वह शनिवार को कोचिंग जाएगी। राधा का भाई 7 जनवरी को मुंबई से जयपुर आएगा। मेरी माता जी भोजन पकाएगी। So I hope you read the all the sentences. You read the all the sentences. Now you comfortable. मैं कल गांव जाऊंगा। मैं in the sense मैं, I, और I के साथ किसका यूज होता है? Shall. I shall। देन जाने को क्या कहते हैं? वर्ब की पास्ट फॉर्म क्या हुई? जाना। गो। कहां पर? टू विलेज। तो I shall go to। एनी डाउट? अब फुल स्टॉप आ गया। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं पापा कल गांव जाएंगे तो पापा विल गो टू विलेज, और कल की बात है तो क्या क्या लिखोगे? टुमारो। TOMO डबल RO W होती है ना? Are you comfortable? Yes, sir. Are you getting? Yes, sir. Okay, so let's example number 2. Example number 2 is the वह सोमवार को आपसे मिलेगी। यहाँ पे सेल तो मिटा दिया था, सेल लिख दो। देखिए कौन मिलेगी सोमवार को? वह इन द सेंस गर्ल और बॉय। Girl. गर्ल को क्या कहते हैं? सी। आगे क्या आएगा बेटा? Will. वेल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सी इट दे यू एंड ऑल का मतलब सभी, या सी भी आ गया ना, सी का मतलब सी आ गया, सी का मतलब सी आ गया ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेल, वेरी गुड। क्या लिखेंगे बेटा? Will. विल। सी विल। अब क्या कहेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलने को क्या कहते हैं? मीट। क्या कहते हैं? सी विल मीट। सी विल मीट किससे? आपसे। सी विल मीट यू। कब मिलेगी? तो अगर डे और डेट हो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑन। क्या लगता है? आंखें बंद करके सुन लेना, ऑन लगता है। आज भी ऑन लगेगा। 10 साल बाद में IAS के एग्जाम दोगे तो भी ऑन ही लगेगा। चाहे से तारीख हो चाहे से डेज हो, डे और डेट से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन। क्या लिखोगे यहाँ पर? ऑन। ऑन मंडे। क्या आएगा आगे? फुल स्टॉप आ गया। Yes, तो sir. वह सोमवार को आपसे मिलेगी, सी विल मीट यू ऑन। Monday. वह रविवार को आपसे मिलेगा, ही विल मीट यू ऑन संडे। वह 26 जनवरी को आपसे मिलेगा, ही विल मीट यू ऑन 26 जनवरी।
मैं गांव जाऊंगा, कब जाऊंगा? सैटरडे को। मैं गांव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज ऑन सैटरडे। मशीन की तरह दौड़ोगे, इतना दौड़ोगे, इतना दौड़ोगे, इतना दौड़ोगे, खुद को पहचान नहीं पाओगे कि इसमें इंग्लिश सीख गया, ओ आई एम एक्सीलेंट इन इंग्लिश। खुद के लिए आश्चर्यचकित होगा। देखते जाओ आगे का चलन। देखिए, तुम मंदिर जाओगे, तुमको क्या कहते हैं? यू। और यू के साथ किसका यूज होता है? यू के साथ किसका है? यू विल गो टू टेम्पल। वेरी गुड बेटा, शाबाश। यू विल गो टू टेम्पल, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? यस सर। अंडरस्टैंडिंग, यस सर। गेटिंग, यस सर। पक्का पक्का। पक्का पक्का। हाथ ऊपर करो, किसके समझ में आ रहा है? वेरी गुड, थैंक यू। राधा स्टेज पे नाचेगी, कौन नाचेगी? हु इज राधा? सब्जेक्ट। हु इज राधा? सब्जेक्ट। ओके, फिर डांस। डांस। कहां पर? स्टेज पर। तो जब बेटा ये चीज बताओ, अगर ये मान लो ये क्या है? ये स्टेज है, इसके ऊपर नाचेगी तो ऊपर आ गई, तो ऊपर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। और डे और डेट से पहले भी क्या आता है? आर यू गेटिंग? यस सर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। राधा विल डांस ऑन ऑन दी स्टेज। स्टेज। और आगे फुल स्टॉप। स्टॉप। ठीक है, राधा स्टेज पे नाचेगी, राधा विल डांस ऑन दी स्टेज। राधा टेबल पे नाचेगी, राधा विल डांस ऑन दी। टेबल। जब किसी चीज के ऊपर रहते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, मेरा पेन ये मार्कर हथेली के ऊपर है, तो मार्कर इज ऑन दी पाम, ऊपर है। मेरी कैप मेरे सिर के ऊपर है, द कैप इज ऑन दी माई हेड। आर यू गेटिंग? यस सर। पक्का पक्का। पक्का पक्का। अंगूठा दिखाओ, यस सर। यस सर। वेरी गुड। वह रविवार को कोचिंग जाएगी, कौन वह। जाएगी? गी, मेल और फीमेल? फीमेल। फीमेल। किसका यूज होगा? शी। क्या आएगा? विल। आगे गो, आगे कोचिंग। गो टू कोचिंग। कोचिंग। सी विल गो टू, सी विल गो टू कोचिंग। ऑन ओके बेटा। यस सर। अब देखो, राधा का भाई 7 जनवरी को मुंबई से जयपुर आएगा। कहां से आएगा? मुंबई से। देखो इसमें देखना, ध्यान रखना, से आना, फ्रॉम, आने को क्या कहते हैं? फ्रॉम। पहले तो राधा का भाई, तो राधा ब्रदर, राधा पोस्ट ऑफिस ब्रदर, राधा। अब देखो ये राधा लिख दिया, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। क्या होता है? और इसके पास में जैसे ये लिखोगे ना एस, तो ये बन गया राधा का। क्या बना? राधा का। क्या बना? तो राधा का ब्रोदर, राधाज ब्रोदर क्या बना बेटा? राधाज ब्रोदर। कहां जाएगा? विल। क्या आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। क्या कर रहा है? आ रहा है। आने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राधाज ब्रोदर विल कम। कहां से? राधाज ब्रोदर विल कम टू जयपुर। कम टू, कहां से? मुंबई से। फ्रॉम मुंबई। फुल स्टॉप। ओके बेटा। तो राधाज ब्रदर विल कम टू जयपुर फ्रॉम विलेज। राधाज ब्रदर विल कम टू जयपुर फ्रॉम मुंबई। ठीक है। राधा का भाई है? अच्छा 7 तारीख को। देखो बेटा 7 तारीख है, तो इसको थोड़ी जगह की वजह से अपने इसको ये करते हैं, यहां से लिखते हैं फ्रॉम मुंबई, और तारीख से पहले क्या लगाते हैं? ऑन 7 जनवरी। फुल स्टॉप। ये जो एम है ना बेटा, ये नाउन है, तो एम बड़ा आएगा। ओके। और यहाँ पर जे भी बड़ा है। ठीक है। तो क्या बोलोगे इसको? एक बार बोले जोर से, जोश से बोलेंगे। राधा will come to Jaipur from Mumbai on 7 January. Yes, you got 100 marks. Okay, next is मेरी माताजी भोजन
पकाएगी। पकाने को क्या कहते हैं? कुक, है ना। आग लगती है ना, तो जिसके नीचे आग लगती है वो पकता है, आग नहीं लगेगी तो वो कच्चा रह जाएगा। तो मेरी माता जी को क्या कहते हैं? माई मदर। विल कुक फूड, फुल स्टॉप। माई मदर विल कुक food. My mother will cook food. Okay. So I will call to all the students. Please come here. So are you ready? Yes, sir. Pakka pakka? Yes, sir. Okay. Let's start today's oral class. Yes, sir. Okay. आपका क्या नाम है? What is your name? What is your name? आपके पापा का क्या नाम है? What is your father's name? What is your father's name? आपकी माताजी का क्या नाम है? What is your mother's name? What is your mother's name? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you live? आप क्या खाते हो? What do you eat? What do you eat? आप क्या खाए थे? What did you eat food? What did you Eat food. आज हमारा सेंटेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? तो इस सेंटेंस के एंड में हमें मिल रहा था गा गे गी। मैं कल गांव जाऊंगा। आई शैल गो टू विलेज। आई शैल गो टू विलेज टुमारो। लेकिन बोलने में आप इसको ये भी बोल सकते हो, आई विल गो टू विलेज टुमारो। मैं कल हिंदी पढ़ूंगा। आई शैल स्टडी हिंदी टुमारो। आई शैल स्टडी हिंदी टुमारो। सो गाइज, नेक्स्ट, आप कहाँ रहते हो? Where do you live? सामने देखो, लुक अहेड। सामने देखो, लुक अहेड। कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? वेयर विल यू गो? आप कल कहाँ गए थे? Where did you go on yesterday? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? आपने कल क्या पढ़ा था? What did you study yesterday? What did you study yesterday? कल आप कहाँ गए थे? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? कल आपके टीचर ने क्या पढ़ाया? What did your teacher teach you? What did your teacher teach you yesterday? Are you getting? Yes, sir. आपने कल क्या पढ़ा था? What did you study Yesterday. yesterday? Okay. अब देखो, मैं पूछूं, तुम कल कहाँ गए थे? Where did you go to yesterday? Where did you go yesterday? Where did you go? Yesterday. तुम कल क्या खाए थे? What did you eat food yesterday? What did you eat food? Yesterday. तुम कल क्या खाए थे? खाना थोड़ी ना। या What did you eat yesterday? What did you Eat yesterday. आपने कल क्या लिखा था? What did you write yesterday? आपने 26 जनवरी को क्या लिखा था? What did you write on 26 January. 26 जनवरी? आप सर से कब मिले थे? When did you meet sir? आप नानी के घर कब गए थे? When did you go to नानी's house? Are you understanding? Yes, sir. आप समझ रहे हो? Yes, sir. Are you understanding? Yes, sir. अरे आप समझ रहे हो, इसकी इंग्लिश बनाओ। Are you understanding? Are you? Understanding. और इसको कहते हैं Are you getting? Yes, Are you getting? Are you getting का मतलब हो रहा है आप समझ रहे हो। Are you understanding? आप समझ रहे हो, तो आपका रिप्लाई होगा Yes sir. We are understanding. We are getting. We are Getting. okay. Yes, sir. Okay. आप सुबह कितने बजे उठते हो? At what time do you wake up early in the morning? At what time do you get up या wake up early in the morning? या at what time do you get up in the morning? ठीक है। आप सुबह क्या खेलते हो? What do you play
In the morning. इन द मॉर्निंग। आपकी स्कूल का क्या टाइमिंग है? व्हाट इज योर स्कूल टाइम? व्हाट इज योर School timing. आप स्कूल से कितने बजे आते हो? एट व्हाट टाइम डू यू कम टू होम फ्रॉम स्कूल? आप स्कूल से घर कितने बजे आते हो? एट व्हाट टाइम डू यू कम टू होम From the school. फ्रॉम स्कूल? ठीक है, मजा आ रहा है? पक्का पक्का? सचिन, आर यू एंजॉइंग? जोर से बोलो। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, आज कौन सा वार है? व्हाट इज द डे टुडे? आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? अभी क्या टाइम हो रहा है? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? सर कहाँ है? वेर इज सर? मैम कहाँ है? वेर इज मैम? भैया कहाँ है? वेर इज भैया? दीदी कहाँ है? वेर इज दीदी? मेरा टाउल कहाँ है? वेर इज माई टाउल? पैंट कहाँ है? वेर इज पैंट? नल चालू कर दो प्लीज। टर्न ऑन दी टैप, टर्न ऑन दी टैप, टर्न ऑन दी टैप। लाइट जला दो, स्विच ऑन दी। सो गाइज एंड फ्रेंड्स, डियर ऑडियंस, I will request you, please take care, become healthy, wealthy, prosperity, and respect to each and every in this world. My dear friends, please carry on, be continue, think in English, speak in English, write in English. One day you will become excellent. So हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।